کوئی راستہ نہیں ہے ادھر جانے کا؟ نہیں. سہیل بھائی کوئی روک رہا ہے، میں جیسے جیسے قدم اٹھاتا ہوں کوئی آواز آتی ہے. کماری جناب، کماری ایک بار پھر، اور زیادہ سمجھ لیں کہ مسائل کے ساتھ. یہ دیکھیں رکاوٹیں چیک کریں آپ راستے میں. ابھی ہم نکلے ہیں جی، اور کمپلینس جو ہیں وہ پہلے سے بڑھ چکی ہیں، اور ہم حیران ہیں کہ ایک کا مسئلہ تھا پہلے، ایک عامل تھا، اب لائن لگ چکی ہے عاملین کی. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ رپورٹس آئی ہیں، یہ کمپلین آئی ہیں کہ جی اس جگہ کے سراؤنڈ میں کئی عامل جو ہیں وہ اب نظر آتے ہیں کماری کو قید کرنے کے لیے. آپ نوٹ کر رہے ہیں سہیل بھائی؟ سر تو مجھے یہ حیرت ہے کہ ہم نے نشاندہی کی، لوگوں کو بتایا، عبرت دکھائی نا، اس بندے کی عبرت دکھائی کہ کیا حالات ہوگا، اس کے گھر کی فیملی کے کیا حالات ہیں، اس کے کیا اپنے حالات ہیں، کس تکلیف میں اس نے دن گزارے. لیکن لوگوں کو سمجھ کے آتی ہے یار، لالچ کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے، اللہ معاف کرے، منع بھی ہے یہ چیز. لیکن آپ کو یاد ہے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن میں کیا تھا؟ یہی عملات کہ عاملین جو ہیں وہاں پر جی، جمیلہ پمپنگ اسٹیشن ہمارے کراچی حاجی کیمپ کے پاس واقع آج بھی. وہاں پر کیا ہوتا ہے، پورے علاقے کا، بہت بڑے علاقے کا پانی سیوریج کا پانی آ کے جمع ہوتا ہے اور وہاں سے خارج ہوتا ہے. ادھر یہ عاملین حضرات، یہ جادوگر حضرات پہنچتے ہیں. کیوں؟ ان مخلوقات کو جو اس پانی پر، اس گندگی میں آتی ہیں، ان کو قید کرنے کے لیے. بالکل، ان کو قید کر کے اپنے کام کروانے کے لیے. ہم نے ایک عامل کو دیکھا یہاں پر جو کماری کو پکڑنے، اس کو قید کرنے کی نیت سے پہنچا تھا، اس کا کیا حال ہوا. بالکل، اللہ نے اس کو دوسری زندگی دی. اور اب بتا رہے ہیں کہ ایک نہیں کئی ہیں، توڑنے گئے ہیں سر اس جگہ کو، توڑنے گئے ہیں اور بھاگے ہیں لوگ وہاں سے. یار ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھنے کے بعد لوگ سمجھ جائیں، یہ حرکات نہ کریں، اللہ کو مانیں. لیکن یہاں تو سب الٹا ہی لیتے ہیں یار. صاحب نہیں، یہ مجھے اندازہ ہے، بھید میں بھی نا ہم یہ کہتے تھے کہ یار یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہی کرتے تھے اور کرتے وہ تھے. مطلب جو پازیٹیو میسج تھا نا اس کو نہیں لیتے تھے، نیگیٹو کو لیتے تھے. جیسے آپ کرائم شوز دیکھیں، اس میں اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ انجام جو ہے نا برا ہوتا ہے، لیکن وہ انجام کو نہیں دیکھتے، وہ اس برائی پر ان کا دھیان جو ہے نا زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نا وسوسہ ڈالتے ہیں. اب یار ایک بات تو ہے کہ جیسے وہ بھائی نے ہمیں پتا تھا کہ یار کماری کوئی عام مخلوق نہیں ہے، یا کوئی کہتے ہیں نا کہ ایک نارمل طاقت رکھنے والی نہیں ہے. اس علاقے کی، اس ایریے کی جو سب سے بڑی کہہ لیں، جنی کہہ لیں، ایک طاقت رکھنے والی کہہ لیں، ایک مرداس کہہ لیں، وہ ہے. تو اب جی کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ کئی جگہوں پہ جی یہاں پہ رات کو، شام کے بعد عجیب و غریب سے لوگ پہنچے ہوتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں نہیں پتہ، اور وہ بیٹھ کے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. اور عجیب سی آوازیں جو ہیں نا وہ پورا علاقہ دور دور تک محسوس ہوتے، جیسے کوئی آپس میں چیخو پکار نہیں ہو رہی ہوتی. اور ہمیں کہا گیا کہ جی ہم توڑنے گئے تھے اس جگہ کو کہ چلو توڑیں، اس کو فلیٹ کریں، جیسے پیچھے گھر الٹے ہو گئے، یہ نہ ہو یہ بھی الٹا ہو جائے، اس سے پہلے اس کو کر لیں ہم. لیکن وہ توڑ بھی نہیں سکے اور وہاں سے بھاگ گئے. ہمیں بلایا ہے جی، دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ اسی پانی نے ساتھ دیا تھا پہلے. بالکل. تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسے نہیں جا سکتے، پہلے بھی ہم ایسے نہیں گئے تھے. اب تو دگنی احتیاط.
समझ लें कि जो दुआएं आती हैं वो सब पढ़ी हैं सुहेल भाई ने, सब ने, पूरी टीम ने। उसके अलावा समंदर से पानी लिया गया है, पहले की तरह देख सकते हैं आप। कई लोग चाह भी रहे थे, अल्लाह खैर करे, वो भाई तो आप तौबा कर ली थी उन्होंने, आमिल भाई याद है, उन्होंने तो तौबा कर ली थी, उनके बुजुर्ग ने उनको बचाया। अब इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर सुहेल भाई मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने और भड़का दिया उस मखलूक को, क्योंकि पहले कोई मसला नहीं था, उसके बाद चीज़ें थम गई थी। अब ये तो मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना, कुछ चीज़ों से आप ना भी जाना चाहें, बचना भी चाहें, फिर भी आपको दोबारा पहुंचा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हमने कहा था कि आइंदा नहीं जाना उस जगह पर। कई लोग हमसे कह रहे थे कि आप कुमारी को जो है ना दोबारा से इन्वेस्टिगेट करें, कोशिश करें उसको, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि भाई अब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भी नहीं। एक चीज़ पता चल गई, वो पता चल गया जो किसी को भी नहीं पता था शायद। लेकिन यार ये साहब मेरे लिए तो बहुत अफसोस की बात है कि मैं ये चाह रहा था कि वो जो लोग मिलते थे, बात करते थे कि यार आप लोग दोबारा जाएं, तो मैं उनको यही कहता था जाएं क्यों, किस मकसद के लिए जाएं। सही सही। पहले एक मरतबा, 2 मरतबा हमारी जान बच चुकी है वहाँ पे, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया हम पे। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ गए, कैसे पता चल गया इनको? और ये कुमारी इतनी पावरफुल है कि ये 2-2, 3-3, 4-4 आमिल वहाँ जाके बैठ रहे, रात को चिल्ला कर रहे हैं। यार आपको याद है सुहेल भाई, उस आमिल ने क्या कहा था कि मुझसे पहले भी कई गए थे, हाँ, कोई कामयाब नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं पता, याद है उसके अल्फाज आपको? बिल्कुल। कि उसने यही कहा था कि मुझसे, मैं अकेला नहीं था, बहुत आमिलीन गए थे वहाँ पर, सब फारिग हो गए थे। और मैंने कोशिश की, मुझे लगा कि वो मेरे कब्जे में आ रही, लेकिन मैं उसके कब्जे में जा रहा था। बाद पता चला मुझे उसके शहर में आ गया था। कोई भी उसको काबू नहीं कर। तो क्या इनमें चैलेंज होते हैं एक दूसरे को? नहीं, जाहिर सी बात है, अमलियात का भी एक लेवल होता है ना। अब वो ठीक है, बेचारा फंस गया वो उन चक्रों में आके। लेकिन ये कौन लोग है साहब भाई, ये तो जानते बूझते गए हैं यार, इन्होंने तो देख लिया वो। अब यार वो याद है, वो जो करीब में भाई रहते थे वहाँ पे, जिन्होंने हमसे बात की थी, उन्होंने बता दिया कि जी ये लोग हैं जिन्होंने पहले भी मसला हल किया था। अल्लाह खैर, रुकावटें कुछ ज्यादा ही नहीं आ रही। हाँ, ऐसा होता नहीं, जानवर डर गए अचानक। तक के इस तरफ मैं बीच में आ गए। अच्छा जी। उस भाई ने बता दिया कि ये लोग पहले भी आए थे, इन लोगों के जरिए ही वो मसला एंड तक पहुंचा था उस आमिल भाई का। शुरू में जिन लोगों ने सवाल उठाए कि ये क्या था, बाद में अल्लाह की तरफ से समझ लें कि अगले हफ्ते जवाब मिल गए थे कि हमने कब नहीं कहा था उसको कि वो चुड़ैल है या दाढ़ी वाली चुड़ैल। दाढ़ी वाली चुड़ैल वो तो समझ लें गलती कह लें, इदारे की कह लें, थर्ड पार्टी जो सोशल मीडिया रन करती है उनकी कह लें, जिस पे एक्सक्यूज़ भी हुआ। और करम देखें कि अगले ही हफ्ते हम उस आमिल के घर पहुंच गए, उसके भाई से बात, उसके बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग की आपको गुफ्तगू सुनी, उनके जो पीर भाई थे उनकी गुफ्तगू सुनी आपने, तो ये समझ लें चीज़ क्लियर हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर ही हूँ जहाँ हूँ। लेकिन जैसे उन्होंने पहले भी कहा था कि मुझसे पहले कई आमिल हजरात यहाँ पर अपनी कोशिश कर गए लेकिन नाकाम रहे, और हमें इंतहाई अफसोस और हैरान है हम कि यार एक चीज़ जानते बूझते, मतलब ऐसा क्या हो जाएगा अगर कोई कुमारी को हासिल कर लेंगे, खुदा ना खास्ता, ऐसे कौन से काम करवा तो होगा तो सही साहब। मतलब ऐसा क्या हो जाएगा अगर कोई कुमारी को हासिल कर लेंगे, खुदा ना खास्ता, ऐसे कौन से काम करवा तो होगा तो सही साहब। कोई रास्ता नहीं है इधर जाने का। नहीं, सुबह कोई रोक रहा है, मैं जैसे जैसे कदम उठाता हूँ कोई आवाज आती है।
मतलब ऐसा क्या हो जाएगा अगर कोई कुमारी को हासिल कर लेंगे, खुदा ना खास्ता, ऐसे कौन से काम तो करवा देंगे होगा तो यार? सही साहब, कोई पावरफुल चीज़ तो होगी कुमारी, कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है ये। मतलब उसको और कैद करना, और यकीनन वो इसे गलत काम के लिए यूज़ करेंगे। कुमारी कोई मतलब रूहानी काम के लिए तो यूज़ होगी नहीं, वो डेफिनेट काला इल्म करने वाले ही होंगे, कोई इस किस्म का इल्म करने वाले जो मकासद अपने हासिल करने के लिए। लेकिन बड़ा ये अजीब सी बात है सर भाई, नहीं जाना चाहिए यार, लोगों को नसीहत हो जानी चाहिए। उसका हाल आप अंदाज़ा लगा लें, उसके पास अपने कई जिन्नात मौजूद थे, हाँ, उनको उनके बुजुर्ग से मिले हुए थे, वो बड़े नेक काम भी करते थे, लोगों की मदद भी करते थे, समझ लें वो पॉजिटिव काम करते थे। उन्होंने खुद कहा कि मुझ में लालच आ गई, मैं उसके असर में गिरफ्तार होता चला गया, मुझे पता चला कि इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत रखने वाली, सबसे ज़्यादा। मैं तो ये समझूंगा सर, पुराने कुमारी का जो बंदा था, वो जो बेचारा ज़ेर असर आ गया था, उसने भी किसी अच्छे मकसद के लिए कुमारी को हासिल करने के लिए या उस एरिया को पाक करने के लिए नहीं गया था। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो लोग नहीं समझ रहे इस बात को कि कोई कैसे कैद करना, ये देखें होता ये है कि जो कामिनीन हजरात हैं, जादूगर हजरात हैं, ये हमने जमीला पंपिंग स्टेशन में बाकायदा आई विटनेसेस का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जो वहाँ पे वर्कर थे, उनका ये कहना था कि यहाँ पर कई जादूगर आमिलीन हजरात आते हैं और वो यहाँ पर अमल करते हैं मखलूक़ात को कैद करने के लिए। मखलूक़ात को कैद क्यों किया जाता है? उनके ज़रिए काम लिए जाते हैं, काम नेगेटिव काम, ज़्यादातर नेगेटिव। पॉजिटिव काम वाले ये हरकत नहीं करते, पॉजिटिव काम देन से मिलते हैं आपको ना, जैसे उन भाई को मिले थे पहले, बुजुर्गों से कोई देन होती है, बिल्कुल, ये मेरा जिन मेरा दोस्त है, मेरा समझ लें शागिर्द है, ये मैं तुम्हें देता हूँ, इसकी मदद से तुम लोगों को दम करना, उनके इलाज करना, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसे मामले जो इंसान इतने कम वक्त में नहीं कर सकते, उनकी मदद पॉजिटिवली। लेकिन ये जो नेगेटिवली है, जिनको इस्तेमाल किया जाता है जादू के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई खुदा ना परेशान कर तकलीफ़ देने के लिए, तो ये हमने देखा है कि जी लोग इस तरह करते हैं। वही हरकत वो भाई ने की थी, आमिल भाई ने। और होता क्या है, बस आप पहला स्टेप उठाते हैं, उसके बाद फिर आप रुकते नहीं है, बल्कि उसको आप तौबा नहीं करते, रुक नहीं जाते वहाँ पर, शुक्र नहीं करते, आप और बढ़ते जाते हैं। और यहाँ थोड़ा सा एक तरह से मुझे लगता है, जो मुझे महसूस हुआ उनकी गुफ्तगू से और अभी भी, कि शायद इस चीज़ को चैलेंज लिया जाता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं कैद कर लूँगा इसको, मैं पकड़ लूँगा इसको, मेरा अमल सख्त है। इस तरह मुझे लगता है कि इन लोगों में कोई कंपटीशन होता है शायद। उसकी आवाज़, उसकी हरकत, हम उसके घर पे गए, उसके बाद से वो बंदे जो वहाँ पर आते थे पहले भी और वो नहीं आए जी, चीज़ें थम गई, जो भी थी वहीं तक महदूद थी। ये गए हैं उसको तोड़ने के लिए। अच्छा। जी हम इसको फ्लैट करते हैं, लेवल करते हैं यहाँ पर इस चीज़, वो जो बंजर ज़मीन है वो किसी तरह सरसब्ज हो जाए, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो जाए, वहाँ से डर के भागे हैं। और आवाज़ें ऐसी आती जैसे कोई लड़ रहा हो आपस में, चीखो पुकार की। और देखते हैं तो दूर दूर कहीं ना इनको लोग नजर आते हैं, आते कहाँ से जाते कहाँ पे, ये भी कंफर्म नहीं है कि वो आया इंसान ही है या कोई और है, वो जो लोग हैं। अच्छा। क्योंकि किसी ने उनको आते जाते नहीं देखा, लेकिन होते हैं उसके सराउंड में एक से ज़्यादा। इसका मकसद ये है कि वहाँ कुमारी अकेली नहीं है, इसका मकसद ये है कि बहुत सारी दीगर मखलूक़ात भी वहाँ पे मौजूद हो सकता है, क्योंकि ये अकेली तो नहीं रह सकती ना अपने साथ, तो फिर बहुत सारा इसका मामलात भी होंगे तो दूसरे होंगे, और मज़ीद उन्होंने ख़राब कर दिया होगा वहाँ छोड़ के। असल में ये कुमारी नाम कहाँ से आया, कैसे पता चला कुमारी कौन है? कुमारी ये उनको लगा कि यही पहले आए थे, इन लोगों के जरिए ये सब पता चला। तो यही लोग अगर आप कहें इनको, तो ये आके जो है ना कुछ और बता सकते हैं हमें, इस मसले का हल निकाल सकते हैं। अब तक है या ये बिला वजह आके बैठ रहे हैं हमें परेशान कर रहे हैं? मतलब वो लोग कौन हैं, ये आवाज़ें बढ़ क्यों गई हैं, हमें उस जगह को तोड़ने क्यों नहीं दिया जा रहा, ठीक है, कौन डरा रहा है हमें, कौन भगा रहा है हमें अब भी। तो मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि देखिए वहाँ पर हमने कोई आमिल तो नहीं छोड़ा था, लेकिन हाँ वो मखलूक अपनी जगह मौजूद थी, हम हट गए थे पीछे, याद है आपको, वो मौजूद थी। अब उसके बाद एक अरसा गुजरने तक कोई ऐसा मसला सामने नहीं आया। अब क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है वही जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि पीछे ज़्यादातर तो इंसान ही होते हैं, इंसान ही की कोई गलती होती है यार। एक
मखलूक कहाँ नहीं है रब की, हर जगह है। तुम जो उनको वहाँ पर कैद करने, पकड़ने, अमल करने के लिए, चिल्ले करने के लिए, नेगेटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए नहीं, तुम ही तो बिगाड़ते हो वहाँ पर। कई जगहों पर हम गए जी, 40 दिन से बंदी बैठी हुई थी, वो एकदम गायब हो गई और ये जगह पुरसरार हो गई। कई जगह से, कई टाइम से बंदा बैठा हुआ था यहाँ पे, वो पढ़ता रहता था कुछ, वो एकदम गायब हो गया, ये जगह पुरसरार हो गई। तो इंसान ही ज्यादातर हमें मिले हैं पीछे, इन मखलूकात के जाहिर होने के पीछे, उन जगहों के पुरसरार होने के पीछे ज्यादातर इंसानों को ये हाथ मिला है। उगाड़ा में देखा था, बिल्कुल भाई, जगह जगह लोग कमरे बंद करके बैठे हुए हैं, कोई भी समझ छोटी सी किताब पकड़ ली, 40 दिन के लिए बंद कर लिया खुद को कि जी हम चिल्ला कर लेंगे, हम कोई मखलूक हासिल कर लेंगे, शॉर्टकट। ये देन होती है, ये काम करवाए जाते हैं। बड़े किताबों से, बड़े किताबों ने बड़े मामलात खराब कर दिए हैं। ये पढ़ लो ये हो जाएगा, वो पढ़ लो ये हो जाएगा, अल्लाह माफ करे यार। वो फरमाते हैं जी, आज के दौर में अगर जो फर्ज है रब के, आज के दौर में वही पूरे कर ले तो बहुत बड़ी बात है। सही है, ये कर लें। आप इनको प्रायोरिटी नहीं देते, बाकी चीज़ों पे आप, तो ये कर लें, बहुत बड़ी बात है, खुलूस दिल से। बिल्कुल जी, आप लोग यही सोच रहे होंगे, यही चाह रहे होंगे कि हम ज़रा एहतियात करें, कुछ तो ये भी चाह रहे होंगे कि ना जाएं। यकीनन मुझे बड़ी खुशी होती है ये महसूस करके कि जी लोगों को ना सिर्फ मोहब्बत है, लोगों को एहसास ख्याल है हमारा। बिल्कुल, बाकायदा लोग मुझे वास्ते देते हैं कि आप नहीं जाना, आप ख्याल करना अपना। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जी, पहले से ज़्यादा एहतियात है और बहुत सी चीज़ें हमें पहले नहीं पता थी जो अब पता है। तो हमने ऐसे कोई कूद नहीं जाना अंदर। पहले तो हमने कोशिश करनी है जितना बाहर रह के, दूर रह के, अपने आप को बचाते हुए एहतियात के साथ, जितना ज़्यादा एहतियात के साथ हम उससे कोई हम बात कर लें, कोई इस तरह का मामला कर लें तो बेहतर है। एकदम से हम कह लें, समझ लें कि ये नहीं कि कहेंगे कि आओ बैल मुझे मारो। सच बताएं तो एक बार बार वो ख्यालात भी आ रहे हैं, वो माहौल भी आ रहा है, वो इलाका, मतलब कुछ जगह अपने बारे में ख़ुद बता रही होती है ना। आप वो लोकेशन अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपनी, बिल्कुल, तो आपको ख़ुद बता रही होगी कि ये क्या है। और कुछ जगहों को देख कर ही ना आपको अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है यहाँ, कोई नॉर्मल नहीं है मामला। आसपास घर उलट गए हैं, उलट गए हैं। सुन भाई, रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्डिंग में है, आप उल्टे घर हैं। हद्दे निगाह आपको कोई आबादी नज़र नहीं आती। उसके आसपास जितनी ज़मीन है शदीद बंजर है, उधर कोई फसल, कोई काश्तकारी नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, आबादी नहीं, रोशनी नहीं। अल्लाह माफ़ करे, रोशनी से याद आया सुहेल भाई, याद है चांद की रोशनी? मतलब ये जी समझ लें एक तरह से एक बहुत बड़ी फाइंडिंग कह लें, एक बहुत बड़ी हमने एक्सप्लोर की एक चीज़ को कि चांद की रोशनी में वो मखलूक नज़र आती है, आपके कैमरे की लाइट में नज़र नहीं आती। पहली बार जी कहीं सुना था और ये हुआ, मतलब ये करवा दिया गया, ये भी दिखा दिया। हो